Hey guys, it's Miria and welcome back to my YouTube channel for today's YouTube video. I don't even know what I'm doing. This is probably like a half-yearly study vlog or something. But I'm starting this video off very randomly because I just got a very big urge to just film, okay? I thought I was going to take a long break from YouTube or whatever and continue after half yearlies or something. But you know what? I just can't, okay? I need to make videos and that's all. Also, I was scrolling reels, that's when I saw a reel and it like hit me. Okay, I'm all about universe and its signs, and I believe that everything happens for a reason and there's nothing such thing as a coincidence and all. I'm a big believer like that. Okay, so I'm always looking out for signs and stuff. So when shit comes to my freaking feed, I take it personally. Okay, so this reel came to my feed and I just thought to myself, like, I open YouTube Studio every single freaking day. If I post, if I feel down, if I feel high, whatever I'm feeling, I always open YouTube Studio and look at the condition of my channel every single freaking day, even like 2-3 times a day, because it's just a habit. I'm so habitual to just opening YouTube Studio and observing my channel. Okay, so like I just can't leave YouTube and take a break from it. You don't take breaks from the things you love, okay? You continue doing them in whatever conditions. And also, this is my hobby, so irrespective of any response I get on here, it is very important for me to just continue, because I think of this every single freaking day and I can't just leave it. I'm probably going to continue this vlog tomorrow because it's already night time and I have like nothing to do anymore. Okay, hey guys, it is the next day and it is currently 10 o'clock in the morning and I have my physics half yearly tomorrow. So just to give you a little context, मेरे half yearlies अभी चल रहे हैं. ये कोई starting नहीं है, कोई मेरा पहला पेपर नहीं है half yearly का. I've already given half of my papers. जैसे 6 subjects I have, so I have already given 3 paper, जो कि easy subject के paper basically सारे हो चुके हैं. Now PCM is left. Okay, so I have my physics first, फिर एक दिन बाद I have my chemistry and then एक दिन बाद I have my मैथ्स. सो एक दिन का गैप मिला हुआ है पेपरों के बीच में. बात करें मेरे एग्जाम्स की जो हो चुके हैं, तो मेरा फिजिकल एजुकेशन, डेटा साइंस और इंग्लिश का पेपर हो चुका है. फिजिकल एजुकेशन, डेटा साइंस, देयर नथिंग, मक्खन पेपर थे एंड दे ऑल वेंट वेरी गुड. इंग्लिश का पेपर ऑल्सो वेंट फाइन, लेकिन आई फील लाइक आई रियली लाइक एफ्ड अप द ग्रामर पार्ट. आई डोंट नो व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट दिस टाइम, बट ऑब्वियसली आई ट्राइड माई बेस्ट. बट आई फील लाइक मेजॉरिटी मेरे नंबर ग्रामर वाले पार्ट में ही कटेंगे इस बार. एनीवेज, या आई हैव माई फिजिक्स एग्जाम टुमारो. आई एम सो कन्फ्यूज, मैं करूँ क्या? ये मेरे पे एक दिन है, मैं क्या ही कर लूँगी इसमें. ग्रेविटी मेरा अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ था एंड में, सो आई नीड टू रिवाइज ग्रेविटी. ओ माई गॉड, द tan is crazy. I just want to pass in physics this last time. Okay, every time in my PAs also. Okay, PA1 and PA2 I borderline passed every time. अब मैंने थ्योरी की बात करी ली है, तो आई फील लाइक मैं अपनी थ्योरी ही स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ. कुछ डेरिवेशंस मैंने रिवाइज कर रखी हैं. अभी मैं 2-4 दिन में पिछले वही कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे. तो मेरा बस ग्रेविटी रहता है, ठीक है, ग्रेविटी की डेरिवेशंस रिवाइज करनी रहती हैं. तो आई फील लाइक अब मैं वही करूँगी, बिकॉज बाकी तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना. ओके, सो 20th of September वॉज माई फिज़िक्स का एग्ज़ाम एंड देन ये व्लॉग जो मतलब ये जो क्लिप्स तुम अभी देख रहे हो वो 21 सितंबर की हैं. एंड इससे अगले दिन था मेरा केमिस्ट्री का पेपर. तो आज बेसिकली पूरा दिन मेरा केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में ही निकला. आई वोक अप एट 7 बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू एक्चुअली स्टडी फॉर केमिस्ट्री, बिकॉज आई फील लाइक अभी तक PCM में से केमिस्ट्री ही है जो मेरी थोड़े दिमाग में जा रही है. मैथ्स और फिज़िक्स अभी थोड़ा मेरा पीछे ही चल रही है कंडीशन. तो मैंने सोचा था एटलीस्ट मैं केमिस्ट्री के लिए तैयारी भी अच्छे से करूं. फिज़िक्स के लिए लाइक मैंने प्रिपरेशन वाले दिन जो गैप डेज मिले थे उसमें भी कुछ नहीं किया था, बट आई डिडंट वांट टू डू द सेम फॉर केमिस्ट्री. सो आई डिसाइडेड आई एम गोना एक्चुअली स्टडी फॉर इट. बात करें मेरे फिज़िक्स के एग्ज़ाम की, आई डू थिंक आई विल पास. जो मैं चाह रही थी वो आई थिंक हो जाएगा आराम से. और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हो गया सही से. एग्ज़ाम हार्ड नहीं था. अगर अच्छे से पढ़ते, शुरू से न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे होते, सो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था वो. तो मैं कुछ 1 घंटे के लिए केमिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें मैंने आई थिंक चैप्टर 3 रिवाइज़ किया था. एंड देन 8:30 बजे से आई थॉट आई डू सम स्क्रिप्टिंग, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, आई हैव बिन फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव एंड अंदर से वो क्रिएटिविटी जाग रही है मेरी फिर से चैनल वाली. सो आई डिसाइडेड टू स्क्रिप्ट फॉर रील्स एंड स्टफ.
उसके बाद अच्छा खासा ब्रेक लेने के बाद मैं 10 बजे फिर से बैठी क्योंकि मेरे को करना था चैप्टर 2। तो सबसे पहले मैंने उसका रैपिड रिवीजन देखा एंड देन आई स्टडीड देम फ्रॉम माय नोट्स। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह थी वो मैंने डिसाइड किया था मैं शाम को करूँगी, तो ये टाइम मैंने नोट्स ही पढ़े थे। तो देखो फिर तो मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, फिर मैं 4:40 जैसे कि टाइम तुम्हें दिख ही गया है, तो मैं इस टाइम पे फाइनली बैठी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। आई स्टार्टेड विद चैप्टर 2। मैंने कुछ 15-20 मिनट प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस एंड आई गेव अप ऑन दैट। मैं बेसिकली एड्यूकार्ड की क्वेश्चन बैंक से कर रही थी ये क्वेश्चंस। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस स्पीड से करती गई तो मेरे को तो पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है, एक ही चैप्टर के करने में। तो मैंने सीधे डिसाइड किया कि अब सीधे करेंगे नोटबुक के क्वेश्चंस। तो मैं फिर नोटबुक से ही पढ़ी थी बाकी जितना भी मैंने किया।